أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ تو کل ہم یہاں پہ رکے تھے، معرفہ نکیرہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہی سے شروع کریں گے۔ تو اسے کہتے ہیں نکیرہ اور اسے کہیں گے معرفہ۔ تو نکیرہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کتابوں کا ترجمہ کیا ہوگا بتائیے مجھے۔ ہے کوئی ایک کتاب ہے کوئی ایک کتاب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور الکتابوں کا ترجمہ کتاب بس کتاب، بہترین۔ اب یہ اس کا آگے یاد رکھو کہ اعرابی شکلوں کے مطابق نکیرہ اسم کو کن کن حالتوں میں ہم پائیں گے۔ رفع حالت میں آئیں گا بیتن، آخری حرف پر باجی ذرا باجی مائک بند کریے پلیز۔ ہاں، رفع حالت میں بیتن، نصب حالت میں بیتن۔ اب یہاں پہ ذرا غور فرمائیے کہ الف ایکسٹرا لکھا جاتا ہے تا میں، الف نہیں لکھا جائے گا دو جگہ پہ۔ اگر گولتا آئیں گے تو الف نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیزوں سے گولتا ختم ہوتی ہے وہاں پہ الف نہیں آئے گا، لیکن باقی جگہ پہ الف لگاتے ہیں نصب حالت بتانا۔ بولو بیتن، بیتن، بیتن۔ یہ رفع حالت ہے، یہ نصب حالت ہے، یہ جر حالت۔ اس پر اب آج ہم بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ انڈیفینٹ کا مطلب ہے، بیتن کا بھی مطلب ہے کوئی ایک گھر، بیتن کا بھی مطلب ہے کوئی ایک گھر، بیتن کا بھی مطلب ہے کوئی ایک گھر، صرف ان کا سٹیٹس بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ کیسا بدل رہا ہے، کیا بدل رہا ہے، ہم تفصیلی معلومات لیں گے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت سارے سوال کر کے اپنے ذہن میں جو بھی اس کے متعلق ڈاؤٹس ہے وہ نکالی۔ تو بالکل آپ ذرا بھی گھبرائیں گے نہیں، سوالات بہت سارے کریں۔ اگر نکیرہ اسم ہے تو آپ کو ملے گا قرآن میں بیتن کی شکل میں، بیتن کی شکل میں، بیتن کی شکل۔ اگر معرفہ ہے تو ملے گا آپ کو البیتو، البیتا، البیتی۔ تو پہلا سوال آتا ہے، کیا ان کے معنی بدلتے ہیں؟ نہیں، یہ پہلے تینوں کے معنی ہوں گے کوئی ایک گھر، اور تینوں کے معنی ہوں گے گھر۔ ان کے جملے میں آنے کے جس شکل میں آ رہے اس کے مطابق یہ بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ اتنا یاد رکھیے کہ آپ کو قرآن میں کوئی بھی اسم عام ملے گا، کامن ناؤن ملے گا تو اس شکل میں ملے گا، یہ کامن ناؤن ہے، اور یہ نکیرہ ہے، یہ کامن ناؤن ہے، یہ معرفہ ہے، جیسے نہیں۔ یہ تینوں شکل میں آپ کو ہمیشہ یہ اسم اسی شکلوں میں ملے گا۔ ہم کو متعین کرنا ہے، یعنی ہم کو فکس کرنا ہے کہ انہیں جملے میں آیا ہے تو اس کا رول کیا ہے، انہیں رول یعنی کردار کیا نبھا رہا ہے، وہ ہم اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر آپ کو بتانے لگا ہوں میں کہ ہر ایک اسم قرآن میں، ہر ایک اسم جب وہ نکیرہ حالت میں آتا ہے تو بیتن یعنی حالت رفع، بیتن یعنی حالت نصب، اور بیتن حالت جر۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گیا؟ تو اس کے معنی انہوں نے کیسا فکس کرے بھائی؟ عرب لوگوں نے یہ نام رکھے تو کیوں رکھے؟ کوئی اگر بلند حالت میں، سیدھا حالت میں، رفع کا مطلب کیا ہے؟ بلند، اچھے سٹیٹس میں، ہٹی کٹی حالت میں، تو عرب اس کو بولتے ہیں رفع۔ رفع یعنی کہ بلند، کھڑا ہوا ہے۔ اور بیتن کا مطلب ہے وہ گر گیا، اوندھا گر گیا۔ بولو بیتن کا مطلب کیا ہے؟ وہ چینج ہو گئی اس کی پوزیشن، وہ جو حالت میں تھا بلند، بلند حالت میں سے عرب میں کسی کو مار لگا اور گر گیا
तो उसको क्या बोलते हैं? नसब हालत। बोलो नसब हालत, बोलिए मेरे साथ, हालत नसब। कोई नहीं है क्या क्लास में आज? हालत नसब। हालत नसब। जी जी। और तीसरी हालत है, उसको घसीट के ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको? घसीट रहे हैं, नीचे से गिरा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हालत जर। तो आप अपने आंखों में विजुअलाइज करें, एक आदमी हट्टा कट्टा खड़ा है, तो क्या बोलेंगे उसको? रफा हालत। उस पर कोई अमल हुआ, उस पर कोई अमल हुआ, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ, वो गिर गया, तो उसको अरब बोलते हैं नसब हालत, गिर गया। समझे ना? ऐसा था तो ऐसा होगा। और उसको खींच रहे हैं, तो वो जर हालत में। तीन आंखों के सामने आपके तस्वीर खड़े कर दीजिए, तो कुछ बड़ा काम नहीं है। सब उर्दू में बोलते हैं, उन्हें हट्टा कट्टा खड़ा है यार, तो बोलना रफा हालत में। उन्हें मार खा के गिर गया यार, तो बोलना वो नसब हालत। उसको घसीट रहे हैं, तो जर हालत। यह है मोटी जबान में बताए हुए आपको एग्जाम्पल। ठीक है? ग्रामर के एतबार से नहीं, हमारी दुनियादारी के एतबार से ये पहले हमें अरबों ने ये नाम रखे, तो कहां से रखे? तो ये अरब की तरीका है बोलने। कोई आदमी हट्टा कट्टा है, मजे में है, तो क्या बोलेंगे? हालत रफा में है। उस पर कुछ अमल हो गया, किसी ने कुछ अमल करा, एक्शन करा, और वो गिर गया, तो क्या बोलेंगे? हालत नसब में है। और उसको घसीट रहे हैं, तो हालत जर में। आपको समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया जी। रहा है। कौन सी जबान में बोल रहे हैं, मेरे को समझ रहा नहीं। कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं आप, बात कर रहे हैं मुझसे? समझ गया तो बोलो समझ गया, नहीं समझ गया तो बोलो नहीं समझा। बोलिए बाजी, बोलिए। सर समझ में आ गया सर। कोई हाँ। तो भी एक एक जनो बोले नहीं समझ में आया और कोई एक बोले समझ में आ गया। अच्छा कोई ठीक है भाई, एक आप आपा ने कहा कि नहीं समझ में आया। अच्छा नहीं समझ में आया तो बात समझिए। रफा हालत में है, तो उसके आखिरी लेटर पर एक या दो पेश होंगे। नसब हालत में है, तो उसके आखिरी लेटर पर एक या दो जबर होंगे। और जर यानी खींच दी, देखो यहाँ लिखा, ये खड़ा दिख रहा, एरो दिख रहा, सीधा है तो रफा हालत में है, मार खाया तो नसब हालत में है, और घसीटे जा रहा तो जर हालत में। ठीक है भाई? तीन हालतें होती है इसम की, हमेशा तीन हालतों को मुतयन करना, इसे कहते हैं एराब। क्या कहते हैं? एराब। अब जरा आप यहाँ पे गौर फरमाइए, ये नाम पढ़िए आप, मोहम्मदुल। ठीक है? फिर उसका अंदर तब्दील होकर कुरान में आएगा मोहम्मदन मोहम्मदन मोहम्मदिन। ये तीनों भी आते हैं कुरान में। तो रफा हालत में ये नाम आ रहा तो मोहम्मदुन होगा, नसब हालत में आ रहा तो मोहम्मदन होगा, जर हालत में आ रहा तो मोहम्मदिन होगा। यहां जरा गौर फरमाइए, अल किताबु है तो रफा हालत में है, और अल किताबा है तो नसब हालत में है, और अल किताबी है तो जर हालत। रसूलुन है तो वो रफा हालत में है, रसूलन है तो वो नसब हालत में है, रसूलिन है तो वो जर। इतना ही याद रखो, बाकी कुछ मत सोचो, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। यहां पर जरा गौर करना, और जरूर मुझसे खुली आवाज में कहिए, सर समझ रहा नहीं समझ रहा, कुछ तो भी बोलना। ठीक है? अच्छा चलिए, इसको बोलते हैं डिक्लेंशन। डिक्लेंशन यानी घसरना। डिक्लेंशन मतलब, डिक्लाइन का मतलब झुकना। तो कोई भी इसम जो है, बाय डिफॉल्ट उसकी बुनियादी हालत होती है रफा। बोलिए, कोई भी इसम जो मिलेगा आपको, उस पर कोई भी एक्शन हुआ नहीं है, तो कौन सी हालत में रहेगा वो? रफा हालत में रहेगा। अगर उस पर किसी का एक्शन पड़ा, वो नसब हालत में। और उसके सामने अगर रिश्ता बनाने वाला जर आ गया, वो जरी हालत में होगा। तीन। अब जरा आप जोर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई मायने जब बताइए मेरे को, मायने।
نہیں ہے لا الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، نہیں، یہاں تک پڑھو، لا الہ اتنا ہی پڑھو. نہیں ہے کوئی معبود شاباش. ہاں، یہ کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ جملہ ختم ہو گیا. اب یہ جملہ شروع ہو رہا ہے اگلا یہاں سے. بولو، پڑھیے. کل حافظ صاحب نے یہ پڑھایا آپ کو. محمد الرسول اللہ. ہاں، معنی بولو بیٹے اس کے. سر محمد یہ اللہ کے رسول یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہلے بولو محمد محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول. تو یہاں پر یہ جملہ، اس جملے میں یہ نام کیا کردار نبھا رہا ہے؟ اہم کردار ہے. اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اس پر کسی چیز کا اثر ہوا کہ اس کے سامنے کوئی چیز آئی کیا جس سے یہ جو ہے نصب ہونے کے لیے؟ نہیں. یہ بن رہا ہے فاعل، یہ بن رہا ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ کا مطلب ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ اہم کردار ہے جملے میں. تو یہ سینٹینس میں محمد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہاں سے شروع کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول. تو کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے؟ بولو بچوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یس سر، بالکل صحیح ہوا. اچھا، یہاں تک سمجھا گیا سب کو؟ جی سر. جی، ویری گڈ. اب یہ جملہ پڑھیے بیٹے. اشہد ان محمدن رسول اللہ. اب رکو. اشہد ان کا مطلب بولو. بے شک واحد میں گواہی دیتا ہوں بے شک. بولو، میں گواہی دیتا ہوں. بولیے. میں گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں میں کہ دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ کس کی گواہی دے گا؟ گواہی کس پہ جا رہی ہے؟ محمد صلی محمد اللہ علیہ صلی وسلم اللہ اللہ کے علیہ رسول ہے. یہ اسم پہ جا رہی ہے. تو یہ شہادت کا اثر کس پہ آ رہا ہے؟ ہمارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آ رہا ہے. تو جب اس کے یہاں پہ اس پر کوئی اثر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر شہادت کا اثر اس نام پہ آ رہا ہے. تو شہادت ان کی دی جا رہی ہے، ان پر کام ہو رہا ہے. تو یہ بنے گا نصب حالت میں، اور یہ نام بن رہا ہے محمدن. کیوں آیا دن بولو ابھی؟ ہاں، میں بولو ایسا کرو، آپ ہاتھ اوپر کرو. میں شہادت دیتا ہوں کہ کس کی شہادت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ جب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو یہ اسم جو ہے اس کی حالت نصب ہو گئی اب. اور یہاں پر ان کی بات چل رہی ہے تو یہ رفع حالت میں ہے. تو ہر ایک اسم پیدائشی کون سے حالت میں ہوگا؟ ڈیفالٹ رفع حالت میں ہوگا. اس پر کسی چیز کا اثر ہوا، اس پر کسی چیز نے کام کیا تو وہ بدل جائے گا، دن سے دھن ہو جائے گا. آپ بات سمجھ گئے؟ اب تیسری چیز پڑھیے. اللہم پڑھو. اے اللہ صلی اللہ. صلی کا مطلب کیا ہے؟ کام ہی ہے. میں بولے میں، ہاں، اللہم اے اللہ میں سلامتی بھیجتا ہوں بھیجتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ تو سلامتی بھیج. اللہم کیا پڑھ رہے بھائی؟ یہ حرف ندا ہے. اللہم اے اللہ تو بھیج سلامتی. کن پر بھیج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اللہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پر. یہ حرف ہے. سنو غور سے بولو. یہ جو ٹکڑا حرف ہے اللہ، اس کے بنیادی انفرادی کوئی معنی نہیں ہے. اس کے معنی کیا؟ پر. خالی پر کا کوئی معنی نہیں ہے. تو انہیں جب دوسرے سے ملتا ہے، رشتہ بناتا ہے، تو اس کو گھسیٹ کے نیچے لاتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں جر جر جر. تو یہ اللہ کیا کرا؟ محمد کا اثر نہیں ہے. جب ان کی بات ہوئی تو محمد بن گیا. یہ اللہ کا داخل ہونا، اللہ نام کا جو حرف ہے عامل ہے. یہ عامل
मालूम अमल क्या करना मालूम है? एक जादूगर है, एक बच्चे को लेके उसके सामने, उन्हें छू करा, उन्हें बकरी बन जा। जिसने अमल किया उसको आमिल कहेंगे, जिस पर अमल हुआ मामूल कहते हैं उसे। समझे ना? इफेक्टेड पार्टी। तो ये पार्टिकल ने, जैसा अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो Cl माइनस हो जाता ना। तो उसी तरह से अल्लाह ने इस नाम पर असर करा और उसको क्या दे दिया? जर हालत दे दिया। तो ये हर्फ जर है, और हर जर क्या करता है? इसम को नीचे खींचता है। फिर से बोलो, अगर इसके सर पर दो पेश आ रहे हैं, वो रफा हालत में है, उस पर कोई असर नहीं है, इसकी वो गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है? ये छड़ाछाट बिल्कुल नाम बुलंद हालत में। बोलो हाँ, समझ में आ गया? बुलंद हालत। और जब उसके ऊपर कुछ काम हुआ, मोहम्मद दुन से क्या बदला उन्हें? मोहम्मद दन हो गया। क्यों भाई? ये काम हुआ उस पर। बात समझ में आ रही? जब किसी पर वर्ड का काम होता है तो उन्हें नसब हालत में चला जाता है, और जब उसके सामने जर आता है तो उसकी तनवीन नीचे आ जाती है। तो तीन आवाजें आ रही हैं यहां पे। बोलो, मोहम्मदन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी नहीं बदल रहा, वो किरदार बदल रहा है। जैसा मैं हमेशा बताता कि अगर आप घर में बैठे हैं तो कमीज पायजामा पहन के आराम से बैठे हैं, लेकिन आप अगर ड्यूटी पे जाते हैं तो आप टाई लगाते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। आदमी नहीं बदल रहा, वहां पे आपका किरदार बदल रहा है। और अगर आप जाते हैं समंदर किनारे तो स्विमिंग का ड्रेस पहन के जाते हैं, आप नहीं बदल रहे, आपका किरदार बदल रहा है। तो ये जुमले में ये इस्म का किरदार यूं बदलता है, और ये है अरबी का दिल। तो क्या है भाई? इसको अगर हमने बोले कंप्यूटर के जमाने में, ये कोडिंग है। काय की कोडिंग है? सब्जेक्ट कौन है? पहले जुमले में फाइल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे जुमले में फाइल कौन है? अशहदु अन, मैं गवाही देता हूं कि, मैं गवाही दे रहा। किसके बारे में दे रहा? तो इसलिए ये मोहम्मदन हो गया। और यहां पे हो रहा है अल्लाह को कह रहे, या अल्लाह आप सल्ली यानी सलामती भेजिए इस पर। ये पर नाम का जो हर्फ है, इन्हें असर कर दिया। क्योंकि हमने देखे थे कि हमारा तीन चीजों से आयत बनती है। क्या करो? इसम। तो चेक करो यहाँ इसम कौन है इनमें? ये है इसम। क्यों भाई? दो तनवीन दिख रहे हैं तो इसम है, ठीक है। फिर देखो भाई फेल कौन है? यहाँ पे कोई फेल है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, नहीं है कोई भी माबूद अल्लाह के अलावा। लेकिन यहाँ पे देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, रसूल, तो यहाँ पर भी कोई एक्शन उस पर नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अशहदु, मैं गवाही देता हूं। मेरी गवाही किसके ऊपर जा रही है? अन्ना के, आई बेयर विटनेस दैट मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद इज द रसूल ऑफ अल्लाह। ठीक है, आई होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन हो गया? तो यहां पे देखो अल्लाहुम्मा, देखो यहां मैं, यहां पे हम अल्लाह ताला से बोल रहे, या अल्लाह तू सलामती भेज। किस पर भाई? पर। ये है हर्फ। तो ये तीन चीजों का जो रोल है वो इस तरह से होता है, और क्या बनता है? जुमला, सेंटेंस। जुमला यानी आयत। बात समझ में आई? और भी देखेंगे अपन, बहुत साफ करेगा। अच्छा, अभी आप जरा यहां पर जोर से उर्दू में पढ़िए। उर्दू वाले बच्चों ने पढ़ी है, बच्चियों ने पढ़ी है, आपके लिए लिख के लाया मैं, आपको इंग्लिश समझता है। पढ़िए। अस्सलामुअलैकुम सर। इसम के मानी की तब्दीली के बगैर पूरी तब्दीली एराब कहलाती है। जरा फिर से, सिर्फ एक लड़की ने पढ़ेंगे, बाकी सब लोग सुनेंगे। हाँ पढ़ो बेटा। इस्म के मानी की तब्दीली के बगैर शक्ल की ज़ाहिरी तब्दीली एराब कहलाती है, और इस तब्दीली की तीन शक्लें होती हैं। वो तीन तब्दीली एराब बता रहा है ये।
नाम का अंदर आदमी नहीं बदल रहा, उसकी करने की क्या है यहाँ लिखा हुआ है, इसम के मानी की तब्दीली के बगैर इसम के माने की तब्दीली नहीं हो रही। किसकी बात कर रहे हैं हम? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर। ठीक है, बदल रहा क्या? मोहम्मदन बोलो तो भी वही है, मोहम्मदन बोलो तो वही है, मोहम्मद दिन बोलो। अब आगे पढ़ो। हाँ, बगैर बोलो। शक्ल की जाहिरी तब्दीली, ये शक्ल की जाहिरी तब्दीली हो रही। जुन जाहिरी है, दन जाहिरी है, दिल जाहिरी है। ये क्यों करे भाई ऐसा? इसको समझने के लिए कि जुमले में इस नाम का किरदार क्या है, रोल क्या है। आप समझे? इतना स्मार्ट लैंग्वेज है ये कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है करने वाला कौन है इसमें। तो यहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर काम हुआ तो मोहम्मदन हो गए, अल्लाह ने काम करा उन पे तो मोहम्मद दिन। बस इतना याद रख लीजिए, और आप चाहे तो इसको लिखिए या सेव कर लीजिए। मैंने मेरी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश किया बताने की कि ये इस तरह से आपको 3 जगह पे एक नाम जाहिरी बदल रहा है, अंदरूनी एक ही इंसान है, उसका रोल बदल रहा है। ठीक है, किसी के सवालात है तो करो बेटा, और बहुत सारा मटेरियल अपने पास और समझाने के लिए। आप ये समझ गए तो मैं बोल रहा हूं इंशाअल्लाह आपको आयतों के 20% आयतों को आसानी से समझेगा। लेकिन आप शर्माना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारी आदत क्या है, नहीं समझा तो खामोश बैठे रहते। बोलिए बोलिए भाई, बोलिए, कुछ तो बोलिए। तो ये 3 हालतें भाई बुनियादी, जो रफा है डिफॉल्ट हालत में। डिफॉल्ट का मतलब क्या है भाई? आप मोबाइल खोलेंगे तो कुछ एप्लीकेशंस ऑटोमेटिक आते हैं, वैसे ही ये ऑटोमेटिक रफा रहता हर एक नाम। जब उस पर काम होता है तो नहीं चले जाता नसब में, यानी नसब का मतलब 1 या 2 जबर, और कोई हर्फ उस पे काम करता है रिश्ता बताने का, तो जर हो जाता है। बस इतना याद रखना है। करने वाले का नाम क्या है? रफा। उस पर काम हुआ तो नसब, उस पर जर ने काम करा तो जर। ठीक है, रफा नसब जर, ये कुरान का दिल है, याद रखो। ये नहीं समझे वो कुरान समझेगा बहुत मुश्किल। ठीक है भाई, और भी आगे चलते हैं। तो ये तीनों चीजों को मैंने यहां फिर लिखा। रफा का मतलब 1 पेश या 2 पेश आखिरी हर्फ पर। नसब का मतलब है 1 जबर 2 जबर आखिरी हर्फ पर। और जर का मतलब है 1 जेर या 2 जेर। तो देखो, उन, अन, इल, ऐसा मिलेगा हर इस्म आपको कुरान में। कोई भी इस्म मिलेगा तो कैसा मिलेगा? उन, अन, इल, या तो फिर आ बोलो, उ, आ, ई, ये 2 ही तरीके हैं मिलने। ऐसे कितने इससे मिलेंगे, बस कितने परसेंट मिलेगा ऐसा बोलो? 90%। कितने परसेंट रहता नाम? 90% नाम, हाँ, रफा नसब जर में, और वो भी जाहिरी दिखता है। 2 पेश या 1 पेश, 2 जबर या 1 जबर, 2 जेर या, तो जेर दिखा कि बोलना रिश्ता है भाई गाइड, और रफा दिखा तो बोलना इसको कुछ भी नहीं हुआ, और नसब दिखा तो बोलना उसको असर हुआ। किसने असर करा? वर्ब ने। इतना याद कर लेंगे, और मैं ये हजारों मर्तबा आपके सामने इंशाअल्लाह रिपीट करते जाऊं। अब इसकी क्या नौयत है, क्यों है, अब हम देखने लगे। अब ये पढ़िए, जैद ने पीटा उमर को। बोलो, किसने पीटा किसको? जैद ने पीटा, शाबाश। तो जैद जो है बेचारा, नहीं बेचारा नहीं, बदमाश, पीटने वाला है। जैद कौन है भाई? पिटाई करने वाला है। तो ये जैद जो है, इसकी जो आखिरी लेटर है, क्या है अपना इंग्लिश में लिखते हैं अपन, ये जैद लिखेंगे, और ये रखा हुआ नाम है
तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? जैदुन। क्यों लगाए भाई? धरनी वाली जात है वो। हाँ, पीटने वाला कौन है? जैद है। और कौन पीट गया भाई? उमर है। तो इसको क्या करेंगे? अन लगाओ। हाँ, तो ये उन लगाएंगे तो बोलो जैद ने हिट बोले तो पीटा उमर को। आगे समझ लो। ने किसको लगाएंगे बोलो? दो पेश वाले को नहीं लगाएंगे। करने वाले क्या है? उर्दू कैसा बोलते हैं? जैद दिल से लगाते नहीं, पीटा। फिर उमर जिसके ऊपर काम हुआ उसको को लगा। तो भैया जब भी को आएगा तो एक जबर या दो जबर, और जब भी ने आएगा एक पेश हो। अब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं भैया, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप लिखिए भाई, पेन पेंसिल लाए के आप दे, तो लिखते ही आपको पता लग जाता है। और जरा गौर फरमाइए कि हमारे कलिमा के तीन शक्लें क्या क्या बोलो? इस्म, हर्फ, ठीक है, तीन है। और वो तीन पहले चेक करेंगे। हाँ, और इस्म की पहचान क्या है बच्चे बोलो? ये जरबा इस्म है क्या? देखो, नहीं है। क्यों? तो अल लगा है क्या? नहीं। तनवीन है क्या? फेल। नहीं। मीम पेश मुंह है क्या? नहीं है। बोलता है क्या? तो ये वर्ब है। बोलो जरबा बोले तो पीटा। ओके, हो गया, पास। अब यहां आ जाओ, इसके सिर पे क्या दिख रहा? तनवीन इस्म है, और वो नाम रखा हुआ दिख रहा भाई। जैद तो नाम रखते ना, तो ये क्या बन गया? जैद। तो जब तनवीन आ रही है एक या दो पेज, तो करने वाला है या मार खाने वाला? हाँ बोलो। तो ये दो पेज दिख रहे ना, इसके बाद लिख दो ने, पीटा जैद ने। अब यहां देखो बोला क्या क्या है? दो जबर दिख रहे हैं, तो यहां पे झट बोल दो। वो पढ़ो, पीटा जैद ने उमर को। ये है लिया पढ़ने का। इसलिए आपको क्या पता लगना चाहिए कि कौन सा किरदार कर रहा? पीटने का काम कौन कर रहा और मार खाने का काम कौन कर रहा? ये देखो, यहाँ पे ये जैद है, ये उमर है। अब इसको उल्टा करेंगे। हाँ, उल्टा करें तो कौन किसको पीटेगा? उमर पीट रहा है जैद को। तो अब ये अरबी में आगे पीछे करते मालूम? हाँ, अरबी में तरतीब ऐसे आगे पीछे होती, सफल करते हैं। तो बोलो दरबा। अब कौन दिख रहा पहले? जैदन है। मार खाने वाला पहले आ गया। बोलो बोलो, पीटा आ गया जैद। देखो, बोलो उमर ने पीटा जैद को। हाँ, जुमले में समझ रहा है आपको? किससे समझना है? कोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग है ये दो पेज दिख रहे हैं यहाँ पर। उमर ने पहले क्या था? जैद ने। अब क्या बन गया? पीटा। किसको पीटा? हाँ, इसलिए एराब के बगैर गैर अरब या अरब भी, तो ऐसा लिखेंगे तो अरब को नहीं समझेगा। वो किसको पीटा? क्या समझ रहा? क्या है? ये कोडिंग है। इससे समझता अपने को करने वाला कौन, अमल किस पे हुआ। अच्छा भाई, अब ये देखने के बाद आप मेरे को सवाल करेंगे। अब देखो, दोनों भी सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जैद दिख रहा है, यहाँ पे भी जैद दिख रहा है, यहाँ पे भी उमर दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, वही भी नहीं है, दोनों दिखने हुए। लेकिन इनके सर पर अलामतें अलग अलग दिख रही। इन्हें रफा हालत में है, ये जैद नसब हालत में है। ये उमर नसब में है, ये रफा हालत में। तो यहाँ पीटने वाला ये है, यहाँ पिटने वाला ये, यहाँ पीटने वाला ये, पिटने वाला ये मायने देखो इंग्लिश में लिखा, जैद हिट उमर। जैद ने पीटा उमर, यहाँ पे उमर हिट जैद। तो ये बुनियादी चीज है, लिख के रखो। और ये तमाम कुरान में ये इफेक्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं मिले, नहीं नहीं, तकरीबन तकरीबन 90% आयतों में ही मिल रहा है। एराब बदली होने से मायने बदली। बिल्कुल मायने नहीं बदलते भाई, उसका रोल बदलता। जैद हाँ, वही रोल का, बदला। हाँ, रोल बदलता। रोल यानी कि उन्हें क्या किरदार निभा रहा। तो मैंने जंगली जबान में बोला था, हीरो मारने वाले के पास एक या दो पेश होंगे,
विलन मार खाने वाले के पास एक या दो जबर होंगे, इतना ही याद रखो मोटी जबान में। अब भी कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप बेफिक्र रहिए। मैंने 50 किस्म के तरीके लाया आपको सिखाने के लिए। इंशाअल्लाह मैं आपको पढ़ा के रहूंगा। ये अ, और एक लोकल लैंग्वेज में ये जैसे कि रफा हालत में यानी काम करने वाला, शाबाश, मतलब बिल्कुल शाबाश। नसब हालत जिस पे काम हुआ। बस खलास भाई, जीत गए आप। अल्हम्दुलिल्लाह आप जीत गए। इसको तावीज बना के गले में डाल लो। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां क्या लिखा मैंने? द एराब केस एंडिंग, केस एंडिंग बोलते हैं, क्या बोलते? केस एंडिंग। क्लैरिफाई क्या करता है? एम्बिग्यूटी यानी कि कंफ्यूजन, किसने मारा किसको, ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए आपको लगते हैं एराब। है समझ में? अच्छा, यहां तो देख लिया अपन ने नसब और जर। इसके पहले सॉरी, नसब और रफा देख लिए। इसके पहले क्या देखे थे अपन ने? यहाँ पे जर्री हालत भी देख चुके हैं। हाँ, यहाँ पे क्या आया था भाई? अला आया था। वो कौन है? प्रीपोजिशन है। बोलो, प्री पोजिशन। तो ये नाम क्यों रखे इंग्लिश में प्रीपोजिशन? ये हमेशा नाउन के सामने प्रीपोजिशन रखा। तो नाउन को पहचानने को मैंने पहले दिन बताया था, अगर नाउन के नीचे जर आता है, हालत क्या आ रही? जेर आ रहा है, तो उसके सामने कौन होगा? हर जर। बोलो जोर से बोलो, हर जर इसम मजरूर। अब मैं बोलूंगा फिर से, हर जर, हर जर। हाँ, करने वाला रफा, जिस पर काम हुआ नसब। इतनी तीन चीजें है वैशाली, लेकिन ये साफ तरीके से बताना बड़ा मुश्किल है, सिखाना। ये तो अपनी जुबान में ही नहीं है ना? हाँ, जैसा आप इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं, आपको इंग्लिश समझती नहीं, तो आपको ये नहीं समझता हीरो कौन है, विलन कौन है। समझता क्या? बताना पड़ता, अबे ये हीरो है, हाँ अब जरा इस पे ध्यान रख। तो वैसे ये नहीं जबान है, तो आप उसको परेशान मत हो जाओ। मैं मुख्तलिफ तरीकों से आपके सामने पेश करता। आप जरा यहां आ जाओ। अब ये क्या क्या आपके पास इसम है, पहले हर्फ है, राइट? अच्छा, पहले चेक करना कि पहला लेटर क्या है। हमला, तीन जबर दिख रहे हैं, बोलो। तीन जबर दिखे तो समझना उसने किया। बोलो फिर से, वो काम है। बोलो क्या क्या होना? तीन लेटर है, तीनों पे जबर है। अब मैं बताऊं, जलसा, बोलो मायने नहीं मालूम, बोलो उसने किया। क्या किया? वो बैठा। खतला, उसने कुछ किया। क्या किया? कत्ल किया। शकरा, क्या किया? शुक्र किया। नजरा, क्या किया? देखा। अब आया समझ में? शरीबा, क्या किया? पिया। हाँ, तो ये यहां पे अलिफ लाम दिख रहा क्या? नहीं है। तनवीन है क्या? तो ये वर्ब है, और ये वर्ब से चालू हो रहा जुमला, उसको जुमला फेलिया बोलते हैं। आया समझ में? तो पहला लेटर की हमने क्या करे? तलाश करें और चेक करके ये पाए कि ये कौन है? काम है। क्या है ये? काम है। अब काम है तो करने वाला होना, तो काम कब बनेगा भाई? काम कब होता? करने वाला है तो काम बनता ना। और करने वाला कैसा पहचानेंगे बात बताओ? एक जबर, जरा ढूंढो, बोला बाजू में कोई। हाँ यहाँ है, है मोहम्मद दिखा। तो उसने कैरी किया, वजन उठा के ले गया। हमल औरत उठाती ना, हमल मतलब हमाल ने कैरी किया, ठीक है? उठाया, ले गया, कैरी किया। तो करने वाला कौन हो गया? मोहम्मद। और काम क्या हो गया? उठाया या ले गए। हाँ, हाजा का मतलब अब हाफिज साहब बता रही है। और उसके बाद में अल किताब का मतलब बोलो क्या है? हाँ, एक खास किताब। एक किताब, खाली किताब। बोलो फिर से,
हाँ हाँ, जरा बच्चों जरा खामोश रहना, नहीं जो करे नहीं है उनको सीखने दो बेटे, मुझे पता है आप एक्सपर्ट है। तो बोलो, मोहम्मद ने उठाया ले गया, क्या ले गया? ये अब अल किताब है, किताबों रहता तो कोई तो भी एक किताब होता था और उसके बाद हाय आ जाता था, ये हाय नहीं है। तो बोलो, मोहम्मद ने ले गया, कैरी किया, क्या कैरी किया? ये किताब। रुक जाओ, यहां तक आ गया। ये किताब इस्म है, फेल है कि हर्फ है? इसमें अल बता रहा अपने को, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलो, ये फी क्या है भाई? में हर्फ है, उसके खुद के मायने नहीं है। उन्हें जब दूसरे से मिलता है तो रिश्ता बनाता है, और रिश्ता बना क्या करता? खींचता है। तो बोलो, ये क्या है? फी कौन है? हर्फ है, ये हर्फ। और ये क्या है बोलो बोलो? यहाँ पे क्या दिख रहा? गोलता दिख रहा, दिख रहा ना? गोलता किसकी निशानी है? इस्म की। हकीकत का मतलब है बैग। हाँ, तो क्या बोले? ये में बैग लग, बोलो में बैग, बैग में। हाँ बोलो, मोहम्मद ने कैरी किया ये किताब काय में। तो यहां पे रिश्ता बन गया उसका, हर जर इसम मजरूर, और यहाँ पे कौन है? काम है, ये करने वाला है। और ये काम इस पर हुआ, किस पे हुआ? किताब पर हुआ। अगर किताब की जरा एराब देखेंगे अपन, एक सेकंड, जरा किताब के ऊपर क्या एराब देखो, जबर क्यों? तो बोलो ले गया, हामिद क्या ले गया? तो किताब पे रस रहेगा ना, तो किताबा बन गया, अल किताब, अल रहने से किताबा, अल नहीं होता तो किताब बन होता था, और साफ हो गया। तो बोलो, रोल क्या क्या है यहाँ पे? काम है, और काम है तो काम करने वाला होना है, और काम करने वाला होना तो एक पेश और दो पेश लाना पड़ता उसको। तो काम करने वाला ये इसम है मोहम्मद, और उस पे मोहम्मदुन है। मोहम्मदुन ने कैरी किया, क्या कैरी किया भाई? जिसको कैरी किया उसको जबर देना पड़ेगा। बोलो, मोहम्मद ने कैरी किया इस किताब को, मोहम्मद ने कैरी किया इस किताब को, कैसा? बैग में। तो मैं आया तो इन्हें क्या करा भाई? खींच दिया नीचे जरा। हाँ, अब तीनों का मायने समझ में आए? एक जुमले में ये तीन लोग मिल सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं। इससे आप फिक्स कर सकते, मुतय्यन कर सकते कि काम करने और जिस पर काम किया वो क्या है और कैसा किया। यहाँ बैग में मोहम्मद ले गया, क्या ले गया? किताब। कैसा ले गया? खलास। अब किसी को आप बोलने का है तो आप बोलेंगे ले गया, उठा के ले गया, बोल ले गया, मोहम्मद भेज दे दो। क्या ले गया? किताब, जबर दे दो, और बैग में रिश्ता, जेर दे दो। खलास, इतने सीधा रखने हैं। और ये एक मरतबा ना, मैं इंशाल्लाह हजारों बार बोलूंगा, ताकि आप कुरान खोल के पढ़े तो आप फट 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 कोडिंग करेंगे, डिकोडिंग करेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे बोलिए, ये नहीं पढ़ने वाले बदकिस्मत है कि नहीं बोले? क्या मुश्किल है? बहुत इजी। तो ये तीन चीजों को मिलाकर गूंदे तो क्या बनता भाई? और इसको ही बोलते हैं मुरक्कब। हाँ, ओके, यहां तक पहुंच गए अपन, माशाअल्लाह। तो फिर पढ़ो, इस्म के माने की तब्दीली के बगैर। अब यहाँ पे इस्म के माने नहीं बदल रहे, खाली कोडिंग बदल रही। करने वाले का टेस्ट, किताबू था, उसको किताबा क्यों बनाए? उस पर काम हुआ। और यहाँ पे क्या था? हकीबतू था, फी आने से उसने हकीबती कर दिया। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? इस्म के माने बदल नहीं रहे, शक्ली तौर पे खाली उसको जाहिर करने के लिए कौन क्या रोल निभा रहा है ये बताने के लिए ये तमाम हरकतें लगाई। इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, ये अल्लाह मुझे हिकमत अता कर, ये आसानी से मैं समझूं, और मेरा इल्म में नफे बख्श इल्म दे मेरे को, ताकि मैं लोगों को आया समझ लो। हाँ भाई, अब आप
बाजी जो बोल रहे थे नहीं समझा, आप समझा के बेटे आपको? जी अब आपकी मुझे हाँ या ना चाहिए भाई, मेरे को भी तो इनाम मिलना। जी जी जब आपको समझ में आ जाए तो गुमसुम बढ़ जाते हैं, नहीं समझा तो बोलते नहीं। बोलो समझा कि नहीं समझा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सिखा देता है इंसान को, खाली अच्छा गुमान कीजिए। चल इसको और टाइट करेंगे, पुख्ता करेंगे। तो तीन चीजें क्या है अपने पास, बोलो? रफा हालत, एक पेश या दो पेश, नसब हालत, एक जबर या दो जबर, और जर हालत। तो जर मिला तो क्या बोलना? रिश्ता। और रफा मिला तो करने वाला, और नसब मिला तो मार खाने वाला। खत्म। ये चाबियां हैं, मालूम? कुरान के नॉलेज खोलने की चाबियां हैं। हाँ। तो भैया हमेशा याद रखो, कुरान में इसम जो मिलेगा नकीरा, बोलो, तीन शक्लों में मिलेगा। नकीरा है तो उन, अन, इन। और इसके मायने होंगे कोई तो भी ये है, कोई ये किताब। अगर ऐसा नहीं है, देखो क्या बता, किताबुन, किताबन, किताबिन, ठीक है? तो उन है तो रफा हालत, अन है तो नसब हालत, इन है तो जर। बैठ गया। अब यहां आ जाए, अब अल लगाए हैं हमने मस्जिद को, तो क्या बन गया? अल मस्जिदु। अल मस्जिद बोले तो मस्जिद, और मस्जिदुन बोले तो है कोई मस्जिद। अच्छा ये क्या है भाई? अल खलमु, ओरिजिनल क्या था? खलमुन। हर चीज ओरिजिनली उन रहता, उसको खास कर तो अलिफ लाम दाखिल करना, और क्या बोलना? खलम। और निकाले तो खलमुन क्या होगा? कोई खलम है, कोई खलम। अब यहां देखो क्या है, ये रखा हुआ नाम है। हाफिज साहब ने आपको बताया कि कुरान में, कुरान नाजिल होने के बाद में जितने भी नाम आए कुरान में, वो इस तरह से आए। मोहम्मदुन है, अलीयुन है, समझे? और यहां पर आप आज के आज देख लीजिए कि कौन से नाम है जो नबियों के नाम हैं, जो उन अन इन ले। पढ़ो, रफा नसब जर। पढ़िए ऊपर क्या लिखा है? मंसूब हालत में है, राइट? ये मंसूब, ये रफा है, नसब है, जर है। जरा पढ़िए, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। ये पढ़िए, शोएबुन, पढ़ो, शोएबुन, शोएबन, शोएबिन, सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, लूतुन, लूतन, लूतिन, हूदुन, हूदन, हूदिन, नूहुन, नूहन। ये तीनों की हालत में जब झुकते हैं, ऐसा करो, रफा, नसब, जर, तीनों भी हालत में जा रही है। ये ओरिजिनल जो है ना एराब, बोलो। लेकिन जैसा हाफिज साहब ने बोले कि जेम्स, ये उर्दू नाम है, अरबी नाम है कि अंग्रेजी नाम है? अंग्रेजी नाम को तो कोई भी नसब नहीं रहती, कोई रफा नहीं रहती, तो जेम्सन, जेम्सन, जेम्सिन नहीं कर सकते। तो वैसा ही कुरान नाजिल होने के पहले के नाम पढ़, इब्राहिमो, इब्राहिमा, दो ही शब्द। बोलो, ऐसा करो, इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा, दो डबल हो जाते। तो इसको बोला जाता है दो तब्दीलियां होती हैं। कितने क्यों होती भाई ऐसा? क्योंकि इस पे पेश है इसलिए। तो मुंह मां, इब्राहिमो, इब्राहिमा। अब अगला देखो, ये क्या है? इस्माइलू, इस्माइला। तो इब्राहिमी नहीं है अगर भी कुरान में कहीं, इस्माइली भी नहीं है। क्यों है भाई? ये इजराइली रिवायत के नाम है। आया समझ है? अब ये देखो, इजराइलू, इजराइला, और तीसरा भी इजराइला ही होता है। अब ये पढ़ो, याकूबू, याकूबा, याकूबा। ज्यादा टेंशन मत लो, ये आपको बराबर बताते जाएंगे, बार 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 बार, ठीक है? ये कौन है भाई? हारून, हारूना।
मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। हाँ, यहाँ बोलो इसाको, इसाखा, इसाका। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टो। बोलो ठीक बोलो तो डबल, दो ही हालत बताता है। और इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये रेगुलर है। तो 10%, मैंने बोला 90% यहां मिलेंगे आपको। उन अन इन में क्या मिलेंगे? 90, 10 क्या मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे। आ गया समझ में? अब देखो, एक तीसरी चीज है बाबा क्या, अब आपने मुर्गे खरीदे, काट के लाए ना, उसको आपने डीप फ्रीजर लाया, सादा फ्रिज नहीं, डीप फ्रीजर में अंदर डाल दिए, 8 दिन के बाद निकलो, वो ऐसी की वैसी निकलती। बोलो कैसी? नो चेंज, फिक्स। तो फिक्स्ड वाला तीसरा है मूसा, मूसा, मूसा। बोलो इसको बोलते हैं ईसा, ईसा, ईसा। इसको बोलो यहिया, यहिया, यहिया। इसको बोलो, हाँ, तो इसको बोलते हैं मबनी। हाँ बोलो, इसको क्या बोलेंगे? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये नाम गलत लिखा हुआ, जरा लिख लीजिए भाई, और इसकी फोटो भी लीजिए। ये तीनों भी तब्दील होने वाले को बोलते हैं मुअर्रब। बोलो, यानी एराब तीनों भी ले रहा है, उन भी ले रहा, अन भी ले रहा, इन भी ले रहा, उन अन इन तीनों लेता, उसको क्या बोलेंगे? मुअर्रब, यानी कि तीनों चेंज हो रहे हैं, उन अन इन, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदुन। तो ये लोग 90% है कुरान। अब 10% कौन है? कुरान नाजिल होने के पहले। हाँ, तो वो कौन है? उसको बोलते हैं गैर मुनसरिफ। बोलो, इसको बोलते हैं मुनसरिफ, इसको बोलते हैं गैर मुनसरिफ। गैर बोलो तो नहीं है उनके अंदर, दो ही है उनके अंदर। बोलो इब्राहिमो, इब्राहिमा, खलास। यहां जाओ, ये एक ही रहता, इसी करता, मूसा, मूसा, मूसा। ये ईसा, ईसा, ईसा। इसको होता मबनी। हाँ, ये देखो मबनी। तो यहां मैं अलग से लिखता, जिसको अरबी उर्दू नहीं आती। ये खाली जरा नाम याद रख लो भाई। पहले वाले क्या बोलेंगे अपन? जिसका सर्फ होता है, सर्फ बदलते ना, सर्फ बोलते उसको। मुअर्रब। सर्फ बोलो, मुअर्रब। इसका नाम है मुनसरिफ। मुनसरिफ। मुनसरिफ अस्मा, यानी ये उन भी होता है, अन भी होता है, इन भी होता है। सबको समझा भाई? हाँ। इसके बाद आता है दूसरा ग्रुप, ये जिसको बोलते हैं गैर, बोलो, मुनसरिफ अस्मा। गैर मुनसरिफ का मतलब तीनों की तीनों हालतें नहीं लेता है, दो ही हालत लेता है। कौन सी? पेश, जबर। तनवीन बिल्कुल नहीं लेता है। क्या करता? हाँ हाँ, एक पे चलती गाड़ी से। तो उसका नाम क्या रखे? गैर मुनसरिफ। इंग्लिश में बोलो ट्रिप टॉट, टिप टॉट। हाँ, और तीसरा क्या बोलेंगे? फिक्स, फ्रोजन, ये फ्रोजन शिकर। जेर भी नहीं लेता ना सर? नहीं लेता बेटे, नहीं लेता। कहां लिखा मैंने? पेश लिखा, जबर। देखो यहां पे क्या लिखेंगे? पेश और जबर लेता है। क्या कहने लेता? नो तदवीर और नो जर। जर नहीं लेता, तनवीन नहीं लेता। बहुत ज्यादा दिल पे लगा लो बात, ये बार बार बोलने वाला हूं। ये तीसरा क्या है भाई? बोलो, नो चेंज, फिक्स। इसका नाम क्या है? मबनी। बस यहां तक का मेरा पढ़ाना था आज। एक कदम हम भरपूर आगे रखे आज, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फैसले से ये करे हमने। आपको कुछ ना कुछ कभी इल्म में इजाफा हुआ होगा इंशाअल्लाह। कल आपको और आगे ले जाऊंगा मैं। तो रोज एक एक निवाला खाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे, आगे आगे पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते आखिर को झंडा ले जाके इंशाअल्लाह लहराएंगे कि मैंने पूरे कुरान का ग्रामर समझ लिया हूं और मैं सिखाने के काबिल हुआ हूं इंशाअल्लाह। आइए आप